Hello my dear students, let me welcome you to the second MCQ lecture of our 12th standard chemistry lesson, that is chemical thermodynamics. कल हमने 17 MCQs के जवाब देखे, आज थोड़े कम देखने हैं. Let us start with the MCQs of the second lecture, दूसरे लेक्चर के साथ जुड़े हुए तमाम MCQs. Question number 1. A thermodynamic quantity is dash. एक thermodynamic quantity क्या है? The answer is A. A quantity whose value depends on the state of the system. Question number 2. Which of the following is a state function? हमने देखा है कि state function एक होता है और एक path function होता है. State function उसके उस value के ऊपर depend करता है, ना कि वो वहां पे कैसे आया. Right? तो which of the following is a state function? Answer is enthalpy is a state function, क्योंकि work और heat जैसे हमने बात करी थी, these are path functions. path function क्या होता है? तो path function depends upon the path जहां से वो वहां तक पहुंचा है. state function is independent of that. इसलिए दूसरे सवाल का जवाब है C, enthalpy. तो first question, the answer is A, first option. Second question, the answer is C, third option. तीसरा सवाल, which of the following is not a state function of thermodynamics? क्या state function नहीं है? The answer is A, work. Work is not a state function. Work depends upon the path followed, it's a path function. Enthalpy, temperature और internal energy, ये सभी state functions हैं. चौथा सवाल, system is said to be in thermodynamic equilibrium. कोई सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है? तो बड़े गौर से सुनिएगा कि जब कभी कोई सिस्टम केमिकल, थर्मल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होती है तो वो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहलाती है. बड़े गौर से सुनिए इस डिटेल एक्सप्लेनेशन को. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में हम सिस्टम को कब कहते हैं? व्हेन इट इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. अगर ये तीनों ही इक्विलिब्रियाज में सिस्टम है तो हम उसको थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं. केमिकल इक्विलिब्रियम यानी there is no chemical reaction taking place between the system and the surrounding. कोई सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में तब कहलाती है जब वो और उसके सराउंडिंग में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही और उसके अंदर भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही. The system is said to be in thermal equilibrium when there is no temperature difference between the system and the surrounding. और सिस्टम के अंदर भी अगर कोई पुर्जे है तो उनमें कोई टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है. We say system is in thermal equilibrium. And when there is no work which is done between the system and the surrounding, ना system surrounding के ऊपर वर्क करती है ना सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर. सिस्टम जब वर्क करती है तो एक्सपांशन होता है, सराउंडिंग जब वर्क करता है तो कंप्रेशन होता है. ऐसा कुछ भी अगर नहीं हो रहा है तो we say it is in mechanical equilibrium. And when the system is in all these three equilibrias, we say system is in thermodynamic equilibrium. तो जवाब देखते हैं. Temperature does not change with time. Okay, so it is in thermal equilibrium. Pressure and volume does not change with time. Chemical composition does not change with time. The answer is all of the above. The answer of the fourth question is all of the above. D, fourth option. पांचवा सवाल, which of the following is a non-spontaneous process? non-spontaneous यानी अपने आप न होने वाली, हमको धक्का देना जरूरी हो जाता है, उस प्रोसेस को हम non-spontaneous कहते हैं. और कौन सा प्रोसेस non-spontaneous है? The answer is C,
थर्ड ऑप्शन. फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम लो प्रेशर टू हाई प्रेशर. स्पॉन्टेनियसली गैस हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाता है. उल्टा अगर जाना है तो वी हैव टू डू द वर्क. इट्स अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. इसलिए पांचवें सवाल का जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. पांचवें सवाल का जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. छठा सवाल देखिए. इन आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस यानी टेम्परेचर इज कांस्टेंट, यानी चेंज इन टेम्परेचर इज जीरो, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. हम आगे जाके पढ़ेंगे कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है. लेकिन एक आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहने की वजह से उसकी अंदरूनी एनर्जी जो होती है वो भी कांस्टेंट रहती है. इसका मतलब उसमें का बदलाव डेल्टा यू, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो. जवाब है सी, थर्ड ऑप्शन. सातवां सवाल. फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस व्हाट हैपेंस? अब बड़े गौर से सुनिएगा. आइसोकोरिक प्रोसेस में वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यानी चेंज इन वॉल्यूम इज जीरो. अब ऑप्शन ए देखिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो दिया है. ऑप्शन बी मुझे मालूम नहीं व्हाट इज डेल्टा एच, लेकिन ऑप्शन सी मालूम है मुझे, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. यानी ए और सी डेफिनेटली सही है. तो लाजमी है कि आई विल गो विथ ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज. क्योंकि मुझे भले ही मालूम नहीं है बी सही है गलत है, लेकिन ए और सी सही है. इस जानकारी के ऊपर आई विल कंक्लूड कि द करेक्ट ऑप्शन इज डी, फोर्थ ऑप्शन. नहीं तो दो ऑप्शन कैसे मार्क करेंगे हम लोग? सो द आंसर ऑफ द सेवेंथ क्वेश्चन इज डी, ऑल ऑफ दीज. इसी के साथ हम टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस का पहला पार्ट जो है उसके कुछ क्वेश्चंस हमने देखे. हमको मालूम है प्रोसेस नंबर 1 आइसोथर्मल, टेम्परेचर रिमेन्स द सेम. आइसोकोरिक, वॉल्यूम रिमेन्स द सेम. आइसोबेरिक, प्रेशर रिमेन्स द सेम. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडियाबैटिक प्रोसेस, हीट कंटेंट्स रिमेन द सेम. तो ऐसे ही कुछ और प्रोसेस वाले सवालों के साथ हम कल मिलते हैं. तब तक के लिए रुक जाएंगे. थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे.